We have credible intelligence that Indians post-Pahalgam have tasked all their proxies undertake terrorist acts everywhere in Pakistan, whether these proxies are operating in Balochistan and along the other parts of Pakistan. Solid evidence tha, information thi کہ اجت دیول جو انڈین NSA ہے he was planning something in Balochistan. لیکن دشمن سے بھی یہ توقع تھی کہ اتنا گر جاؤ کہ معصوم بچے جو ہے وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے. اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جہنم مسر کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے. لعنت تو تمہاری اس بلوچیت پہ. بلوچ کی ثقافت جنگ کا کنڈکٹ اس کے نزدیک سے بھی تم نہیں گزرے. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. بلوچستان جو ہے پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے. تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. ناظرین, پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہم کہہ سکتے ہیں خوفناک اور افسوسناک واقعے کا. پچھلے دنوں تو ہم بہت مصروف رہے, بھارت کے ساتھ جنگ میں توجہ سب کی بٹی رہی, پر جیسے ہی وہ معاملہ کچھ تھما ہے تو ایک دفعہ پھر یا دوبارہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس پر ہماری توجہ جا رہی ہے. اور جا بھی کیا رہی ہے, زبردستی ہم کہہ سکتے ہیں اس طرف مجبوری ہے ہماری کہ ہم اس کو بھی فوکس میں رکھیں. اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ آج جیسے جو واقعات ہیں وہ ہیں. آج بلوچستان کے ضلع خزدار میں ایک صبح اسکول بس پر حملہ کیا گیا جس میں 4 بچوں سمیت 6 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 40 کے قریب بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں. یہ دھماکہ خزدار شہر میں صبح ہوا اس وقت جب بچوں کو اسکول لے جانے والی جو بس ہے وہ شہر کے مختلف مقامات سے بچوں کو پک کر رہی تھی. جو خزدار کا تھانہ ہے وہاں کے SHO نے کہا کہ BBC کو انہوں نے بتایا کہ جس بس کو نشانہ بنایا گیا وہ خزدار کینٹ میں واقع اسکول کے بچوں کو لے کر جا رہی تھی. اب خزدار کا جو یہ ضلع ہے obviously یہ اس میں پہلا واقعہ نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's one of those hot spots in بلوچستان. یہاں بہت فریکوینٹلی واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, اور ہم ان پر بات بھی کرتے رہتے ہیں. چند روز قبل ہی ایک جو لیویز کی فورس ہے اس کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا اور لیویز فورس کے 4 جو اہلکار تھے وہ شہید ہوئے. اس سے پہلے جنوری میں بھی ایک مسافر بس پر حملہ ہوا تھا. اس کے علاوہ ایک سے زیادہ ایسے واقعات ہیں جن کے اندر جو چھوٹے علاقے ہیں ضلع میں, وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے یہ جو دہشت گرد ہیں وہ آئے, انہوں نے علاقے پہ قبضہ کیا, کچھ گھنٹے وہ وہاں رہتے ہیں. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں جو بھی پولیس کی یا لیویز کے تھانے ہیں ان کو بھی وہ ٹیک اوور کرتے ہیں, وہاں سے اسلحہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو غالباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ایسا ایک علاقہ جہاں بہت ایسے واقعات ہوتے ہیں. اٹ از اے ٹربلڈ اسپاٹ ان دیٹ سینس. مگر obviously جو آج کا واقعہ ہے یہ شدت میں اضافہ ہے, بیکاز obviously یہ کوئی نہیں امید کرتا, کوئی نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ بچوں پر حملہ کیا جائے گا. ISPR کی طرف سے بھی بیان اس پر جاری ہوا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں مختلف ممالک, مختلف جو ایمبیسڈرز ہیں پاکستان میں, ان سب نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے بھی اس پہ میڈیا ٹاک کی جس میں انہوں نے بتایا کہ واقعہ کیا پیش آیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو زیادہ زخمی بچے ہیں ان کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے کوئٹہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے, باقیوں کا وہیں علاج ہو رہا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس طرح کے واقعے کی ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ انڈیا بلوچستان میں حملے کی تیاری کر رہا ہے, مگر معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جائے گا اس کی توقع نہیں تھی. انہوں نے یہ جو واقعہ ہے اس کا الزام سیدھا بھارت پر لگایا ہے. آج ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب
और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, काबीना के कुछ और मेंबर्स वो भी बलूचिस्तान जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस वाक़े के बाद क्या रद्द अमल आता है, आगे कोई नई पॉलिसी, नया ऑपरेशन। मगर इस सारे मौजू पे इन द मीन टाइम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल खान साहब, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, और हमें ज्वाइन किया है शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, बलूचिस्तान से रिलेटेड जो वाक़यात हैं उन पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर सबसे पहले तो ये जो आज अफसोसनाक वाक़या हुआ है, कुछ इसकी तफसील हमसे शेयर करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमला क्या हुआ, आई मीन व्हाट आर द डिटेल्स दैट हैव कम फॉरवर्ड टिल नाउ? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। ये एक अफसोसनाक वाकया, शायद इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई बच्चों के बस को और स्कूल के बच्चों के बस को इस तरह निशाना बनाए, और ये कभी नहीं हुआ था। ये आज सुबह जब कैंट के दो हिस्से हैं, एक कैंट के हिस्से से जहाँ ये बच्चे थे वहां से ये जाकर स्कूल जा रहे थे, वो वाकया है पुराने कैंट में। तो वो जब मेन हाईवे, जो नेशनल हाईवे है, 0 पॉइंट कहलाता है, और वहां पहुंचा तो कुछ हमलावर ने अपने आप को डेटोनेट कर दिया, और जो बस की हालत आप देखें उसमें जो अभी तक तफसीलात हमारे सामने आई हैं कि 6 अफराद उसमें शहीद हुए, 4 उसमें बच्चे हैं, 2 एडल्ट हैं। एडल्ट जो हैं वो एक ड्राइवर है, एक क्लीनर है उसके बस का, और ये जो जख्मी है उसको जैसे आपने डिटेल बता दी गई, और ये जख्मी को 38 या 40 के करीब जख्मी है, और उसके बाद अब वो कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंसेस के क्या है कहीं पे, और क्या हुआ, किस तरह हुआ, कौन लोग हैं। जाहिर है अपना अपना रिएक्शन तो उन्होंने बता दिया, चीफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बयान जारी हुआ, मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से बयान जारी हुआ, ये इसमें कोई शक नहीं है दहशतगर्दी है। और आपने डिटेल में बता दी कि थानों पे हमले, लेवीज पोस्ट पे हमले, थाने का असला ले गए, यरगमाल बना दिया पुलिस वालों को, लेवीज को, और ये चीजें अब ऐसा लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट और उसमें है। लोग जो महसूस करते हैं, एक चीज लोग महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट और उसके यानी चीफ मिनिस्टर खुद कल उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, जब वो पशीन में थे तो उन्होंने कहा कि मुझे खास तौर पर जो है सिक्योरिटी अदारे या जो हमारी गवर्नमेंट के जो वो हैं पुलिस, और उन्होंने मुझे मना किया आप ना निकले और ना जाएं, लेकिन मैं इनके उसको एडवाइस को और उसको मशवरे को मैंने एक तरफ किया, और मैंने कहा मैं लोगों के दरमियान जाता हूँ जब वो खुद अंडर थ्रेट हैं। इसी तरह काबीना के जो लोग हैं वो अपने अपने जगह, अपने अपने गांव में जाने से कासिर हैं या अवॉइड करते हैं, नहीं जाते हैं, तो कौन एक्ट करेगा? पुलिस जो है, पुलिस का जो ऑफिसर है वो अपने कंपाउंड में ही रहता है, कोशिश करता है, मूवमेंट उसकी नहीं होती। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो हैं वो कोशिश करते हैं कि नाइट ट्रेवल तो बिल्कुल नहीं, दिन को भी ट्रेवल ना करें। तो ये एक मुश्किलात और एक वो है, और उसकी वजह से शायद लोगों का मोरल भी फिर थोड़ा डाउन होता है। तो जो सिविलियन सेटअप है उनको एक्ट करने की जरूरत है कि वो लोगों में जाकर मोहतात अंदाज में जाएं, लेकिन वो उस नैरेटिव को मजबूत करें कि भाई ऐसा नहीं है, ये दहशतगर्दी हो रही है, इस दहशतगर्दी में जो है हम सबका नुकसान है, और इनको कम से कम कोशिश करें कि आप जब लोगों को जब हौसला देंगे, जब लोगों को वो करेंगे, तो फिर लोग भी निकलेंगे, लोग भी आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। जब आप खुद एक्ट नहीं करेंगे तो लोग क्यों साथ देंगे? लोग समझते हैं कि भाई हम तो, हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। तो वजीर साहब जो हैं अपने 20 गार्ड 50 गार्ड के अलावा नहीं आते हैं। एक लास्ट सिर्फ मैं वर्ड आपको कह दूं कि 23 मार्च गुजरा है, 23 मार्च में एक वजीर साहब जो जब ट्रेवल करते हैं तो 50 और 60 गार्ड
کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں وہ ایک ویڈیو بناتے ہیں کہ اور اپنے گھر کے سین میں بلوچی رقص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں میں 23 مارچ منا رہا ہوں. بالکل لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ 100 لوگوں کے ساتھ جناح روڈ پر کوئٹہ میں نکل آتے تو لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھتا, لوگ بھی جھنڈے لے کے نکلتے. بالکل جی, آئی گیٹ یور پوائنٹ سر. اگر آپ اجازت دیں ویل جسٹ کم بیک ٹو اٹ. ہم ذرا پہلے باسط خان صاحب سے ان کا بھی موقف لے لیں. عبدالباسط خان صاحب, آپ سے تو ہم وقتاً فوقتاً بلوچستان کی سیکیورٹی سچویشن پر بات کرتے ہی رہتے ہیں سر. جیسے شہزادہ ذوالفقار صاحب نے کہا, ایسا واقعہ پہلے کبھی ہوا نہیں. واقعہ پہلے ہوا نہیں, کیا ہم سمجھیں سر کہ یہ بھی یہاں بھی شدت زیادہ اختیار کر لی ہے جو یہ ٹیررسٹ گروپس ہیں؟ obviously جو تناظر ہے پچھلے چند دنوں کا اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جب یہ بھارت کے ساتھ کانفرنٹیشن ہوئی تو کچھ لوگوں نے ہوشیار کیا, انہوں نے کہا کہ اب بلوچستان میں ایکٹیویٹیز بڑھ سکتی ہیں. لیکن سب سے پہلے تو یہ ایک بہت ہی بزدلانہ کارروائی ہے. نہتے معصوم بچے جو اپنی تعلیم کے لیے جا رہے تھے ان کو اس طرح سے بہیمانہ طریقے سے پاکی سے نشانہ بنانا, اس کی مذمت کی جانی چاہیے. میں کرتا بھی ہوں, اور جتنے بھی سوگواران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صبر دے. اب اس کی جو سیکیورٹی آسپیکٹ ہے وہ تو دیکھیں, یہ پہلا واقعہ جیسے شہزادہ ذوالفقار صاحب نے کہا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اس سے پھر ایک چیز آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں ایک نیا فرنٹ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی آج تک ہم دیکھ رہے تھے, یہ نہیں کہ اس سے پہلے اندوناک واقعات بلوچستان میں نہیں ہوئے, بہت بڑے بڑے ہوئے, لیکن آپ کو چیزیں ایک سرٹن پیٹرن پہ نظر آتی ہیں. تو یہ جو آج کا اٹیک ہے ایسا پہلے نہیں ہوا, تو یہ اس پیٹرن کو چینج کرنے کی کوشش ہے. یعنی ایک ایسا میسج دینے کی کوشش ہے کہ اب بلوچستان میں جو ہے وہ معصوم بچے تک بھی محفوظ نہیں ہے. اور جب آپ تھریش ہولڈ جو ہے اپنے اٹیک کی, یا جو آپ کے ٹارگٹ ہے ان کو اتنا نیچے اخلاقی طور پر اتنا پست ہو جائیں اور اتنا نیچے گرا دیں کہ پھر آپ کو سکولوں کی سیکیورٹی کے اوپر بھی جو ہے, کیونکہ اتنا تو دیکھیں نا آپ کتنا ٹارگٹ ہارڈننگ کتنی کریں گے, کتنی فورس ہے آپ کے پاس, کہاں کیا ہر سکول کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں, مطلب مشکل ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں کچھ ایسا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیکیورٹی کا انوائرمنٹ بہتر نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ اتنا اوور سٹریچ کریں گے سیکیورٹی دینے والے اداروں کو تو پھر ایک فیئر کا ایلیمنٹ تو اس کے اندر آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ پیٹرن چینج کرنے کی کوشش ہے, ایک نیا فرنٹ کھولنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جو ریجنل کانٹیکسٹ ہے اس کا, پاکستان ہندوستان کی جو جنگ ہے اس کے اندر جو ہے اس سے اس کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن بہت ضروری ہے کہ اس کا جو ایویڈنس ہو انویسٹیگیشن کے بعد. جس چیز نے پاکستان کو ہندوستان سے جدا کیا تھا وہ تھا ایویڈنس کے ساتھ بات کرنے کا معاملہ. تو خالی یہ الزامات نہ ہوں, اس کا جو ایویڈنس ہو وہ بھی رکھا جائے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھی کنونس ہو. اور پاکستان کے نیریٹو کی ایک جیت تھی ہندوستان کے نیریٹو پہ, کیونکہ وہاں ایک جنگوازم تھا, وہاں پہ جو ہے بغیر ثبوت کے بات کی جا رہی تھی, تو ہمیں ثبوت کے ساتھ بات کرنی ہوگی. اور یہاں پہ جو انوائرمنٹ اب ایوالو کر رہا ہے اس کو ڈیفینیٹلی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ پھر جو انوائرمنٹ بن رہا ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ سیکیورٹی کے کیا میئرز لیے جانے ہوں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ اب کاروائیاں بڑھیں گی اور ان کا دائرہ کار بھی بڑھے گا انفارچونیٹلی. تو ہمیں اس کو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے, لیکن ساتھ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے جو گیپس ہے سیکیورٹی کے ان کو ری وزٹ کر کے جو میئرز لیے جانے چاہیے وہ ہمیں لینے چاہیے. بالکل ٹھیک جی. شہزادہ ذوالفقار صاحب, سر عبدالباسط صاحب بھی ان اے وے وہی بات کر رہے ہیں جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ایک طرف آپ کہہ رہے تھے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں تو حکومت میں جو نمائندے ہیں وہ لوگوں کی مورال بوسٹنگ بھی نہیں کر پا رہے. سر کیا وجہ ہے کہ اب اگر حکومت, جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ خود ان کی سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ عام لوگوں سے کم نہیں ہے. دیٹ از واٹ آئی ایم انڈرسٹینڈنگ کہ وہ گارڈز کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتے, اپنے گاؤں نہیں جا سکتے, پاکستان ڈے کا ایونٹ منا رہے ہیں تو وہ گھر کی چار دیواری میں منا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیشہ ایسے تھا یا آپ کے خیال میں اب پچھلے سال ڈیڑھ میں یہ زیادہ خراب ہو گئی ہے صورتحال جہاں حکومت کا تعلق ہے؟ سر
देखें हुकूमत को चाहिए इस चीज के उनको तलाश करें ना, रूट काज क्या है, क्यों वो इतने मजबूत होते जा रहे हैं। कल तक वो पहाड़ों में छुपे थे, आ जाते थे, रोड पर कुछ कह करके भाग जाते थे। अब क्या वजह है कि जब वो आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, पहाड़ पर तो गाड़ी और मोटरसाइकिल न चढ़ सकती है ना वहां से आ सकते हैं, और क्या वजह है कि वो गांव में और उसमें कोई अचानक किसी शादी की तकरीब में वो आ जाते हैं और वहां तकरीरें करके और चले जाते हैं बिलो खौफ। ये तो एमपीएस का काम है, मिनिस्टर्स का काम है कि वो राय हमवार करे, पब्लिक को वार्न करे। ऐसे लोगों का जो है, आप देखते हैं तो मशकूक चीज देखते हो, मशकूक लोगों को देखते हो, यू हैव टू इन्फॉर्म। आप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करो, हमें इन्फॉर्म करो, अपने दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करो, ताकि ये हमारे बच्चे जो हैं इसमें जल रहे हैं, इस आग में जल रहे हैं, ये फ्यूल बन रहे हैं, क्या वजह, ये तलाश करने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, खुद वजीर आला इस चीज को मानते हैं, मीर सरफराज भुट्टी साहब के करप्शन भी है और आपका गवर्नेंस की इशू बहुत ज्यादा है, मिसमैनेज बहुत ज्यादा है। जब एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर अफसर वो कुछ पैसे की वजह से या किसी वजह से वो आएगा, तो वो तो जो उसको लगाएगा तो उसके पीछे भागेगा ना, वो आईजी के पीछे क्यों भागेगा, चीफ सेक्रेटरी के क्यों पीछे भागेगा। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि लोगों का एक स्ट्रॉन्ग वो हो, एक इत्तेमाद हो कि ये सिस्टम हमारा है। अब तक तो नौजवान आम आदमी जो है वो समझता है कि ये सिस्टम मेरे मुफाद के लिए नहीं है, ये जो सारा कुछ गवर्नेंस का जो सिस्टम है ये मेरे लिए नहीं है, ये स्कूल, ये हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और दूसरे वो नहीं है। तो वो जो एक सिंबल होता है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की वजूद का एहसास दिलाती है, वो चीजें जब नहीं होंगी तो फिर मैं और आप भी कहेंगे कि भाई अपने काम से काम रखो। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब्दुल बासित साहब, सर ऑब्वियसली आप तो सिक्योरिटी के इशू की बात कर रहे थे ना, कि ये सब चीजें देखने की और सिक्योरिटी पे भी एक बहस करने की जरूरत है। पर सर शहजादा जुल्फिकार साहब तो उसका एक दूसरा एंगल जो बहुत जरूरी होता है काउंटर इंसर्जेंसी में, द सिविलियन साइड, द हार्ट्स एंड माइंड्स गेम, द बेटर गवर्नेंस, वो सब का भी जिक्र कर रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है। देखिए, वो बड़े तरीके से एक बहुत ही अहम बात कह रहे हैं। मैं थोड़ा खुल के बात कर देता हूँ कि जो यहाँ पे स्टेट सोसाइटी का गैप है वो तो बहुत ही ज्यादा है। आप उसको सेंटर पेरिफेरी का रिलेशनशिप कहें, स्टेट सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो महरूमियां हैं उनका अदाला नहीं हो सका। तो फिर जिस तरह की यहाँ पे जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो उससे उनको यही लगता है कि ये हमारी कॉस्ट के ऊपर किया जा रहा है, तो उससे उनको सिक्योरिटी के बजाय इनसिक्योरिटी फील होती है। फिर जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, ये एक खुली बात है कि ये किस तरीके से मार्ज़ वजूद में आई, तो उनका जो गैप है लोगों के साथ वो इट्स क्वाइट टेलिंग एक्चुअली। तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो कॉन्फिडेंस उस तरीके से वो ट्रस्ट आ नहीं सकता, लेकिन लाना चाहिए। बेहतर गवर्नेंस होती तो लोगों का ट्रस्ट आ ही जाता कि चले जैसे भी आए अब आ गए हैं, बेहतर गवर्नेंस कर रहे हैं, तो लोगों की एक होप हो जाती है। लेकिन जब आप गवर्नेंस भी ना कर पाए, अपने इलाकों में भी ना जा पाए, लोगों को डेवलपमेंट भी नजर नहीं आ रही और जो सिक्योरिटी है वो पहले से ज्यादा डिटेरियोरेट करती जाए, तो कहीं ना कहीं फिर जो है जो एक पॉपुलर सेंटीमेंट होता है उसके अंदर लोग इस तरह की रिजीम्स को they see them as part of the problem, not part of the solution। तो मेरा ख्याल है इस पे बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत है। तो ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, वो गवर्नेंस की बात हो, वो डेवलपमेंट की बात हो, वो सिक्योरिटी की बात हो, वो एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो, इन सारी चीजों पे अब ये बहुत ही, अब अगर उस जाविये में फिर देखेंगे तो बहुत ही बड़ा एम्बिशियस किस्म का एजेंडा लगता है कि फिर तो अगर ये करना है तो बेसिकली हम एक पैराडाइम को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। किसी चीज को आप एक कहीं से अगर इब्तदा करनी हो तो मेरा ख्याल है उसकी इब्तदा पहले तो यह है कि सिक्योरिटी उससे हो सकती है। उसमें यही है कि कम से कम जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हैं उनमें कमी लाई जाए। जब एक बार उसमें कमी आ जाती है तो जो एहसासे महरूमी है उसके अजाले की तरफ जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेप्स लेने चाहिए।
मैं पहले भी आपके प्रोग्राम पे कह चुका हूं, मैं बार बार ये बात कहूंगा, ठीक है यहाँ पे एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आज के अटैक को देखा जाना चाहिए, क्योंकि उससे लिंक कहीं ना कहीं बनता है, उसकी एविडेंस तफ्तीश के बाद बाहर आ जाए, उसको प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जिसको दहाइयों से जो है एक सिक्योरिटी रिस्पांस के नीचे ले जाके एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को तो कम कर सकता है, लेकिन उस एहसास महरूमी का अजाला नहीं कर सकता। वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस से ही होगा, और उसके लिए जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। शहजादा जुल्फिकार साहब, बहुत जल्दी आपसे पूछेंगे, वजीर आजम साहब, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब दोनों बलोचिस्तान में, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज कोई बड़ी अनाउंसमेंट आएगी, कोई ऑपरेशन या कोई और इनिशिएटिव? देखिए, अनाउंसमेंट तो पहले आ चुकी, जब पहले जाफर एक्सप्रेस का एक वाकया हुआ उसके बाद तो बिल्कुल जो उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, अभी वो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने उस वक्त कह दिया था और बड़ी सख्ती से कहा था कि अब हार्ड स्टेट का जो है वो मूव करेंगे, और साफ अभी जो है स्टेट जो है वो सॉफ्ट उनके खिलाफ नहीं है। तो अब ये अनाउंसमेंट आ गया, जाहिर है ये एक जेस्चर भी देना था कि बलूचिस्तान के उन लोगों को कि एक बड़ा संगीन वाकया हुआ है, हम उनके साथ हैं, जख्मियों की इयादत करना, काबीना का इजलास करना, कुछ स्टेप्स सोचना कि क्या करना है, किस तरह करना है। एक स्टेप तो लिया जा रहा है कि सबसे बड़ा ज्यादा वो समझते थे कि लेवीज जो है वो अब एब्सोल्यूट वो हो गया, इसको अब जो है वो पुलिस में को कर दें, पुलिस में तब्दील करते जा रहे हैं बड़ी तेजी से, तो देखें कि उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन एक्शन और ये तमाम चीजें तो होती रहेंगी, और उन्होंने अनाउंस कर दिया और वो उसको शायद थोड़ा उसका वो बढ़ा दें, तो ये चीजें होंगी। लेकिन जिस चीजों का बासित साहब ने जिक्र किया कि पॉलिटिकल प्रोसेस उसको मजबूत करना चाहिए, उसमें लोगों की रजामंदी शामिल होनी चाहिए, मर्जी शामिल होनी चाहिए। अगर लोगों को ला के थोप देंगे वो शायद मेरे ख्याल हल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज का जो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है और उसके ऊपर जो कुछ जमातों के एतराज़ात हैं। I beg leave to move that the bill to restrain the solemnization of child marriage in the Islamabad capital territory. जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो तहरीक के मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया जाता है। 18 साल से कम बच्चे एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो जुर्म होगा। ये मौका है इसका, मुल्क की दिफा के लिए खड़ा हूँ, सबसे अव्वल में खड़ा हूँ। वहाँ आप एक ऐसा बिल लाएंगे जो मेरे नजदीक वो शरीयत के मुताबिक नहीं होगा, फिर तनाज़ा पैदा होगा, फिर आप कहेंगे मुल्क के हालात में है, मौलाना साहब वहाँ की क्या कर रहे हैं इस मौके पर। ऐसे हालात का नाजायज फायदा उठाना, इसकी भी इजाजत नहीं दी जा सकती। जहाँ तक बात रही शादी की, तो उसका एक तय शुदा तरीका है और वो बलूगत है। किसी को किसी वक्त आएगा, किसी को किसी वक्त आएगा, लेकिन उसमें मजहबी शर्त ही है। आप वहाँ कानून लाएं जहाँ जबरदस्ती की शादियाँ हो रही हैं, जहाँ गन पॉइंट्स पे शादियाँ हो रही हैं, जहाँ पे वालिदैन शादी के बहाने अपने बच्चों को बेच रहे हैं, सौदाबाजी हो रही है। हमें वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो नहीं करना चाहिए। लड़कियों को अपने घरों में रहना चाहिए, 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो, माँ बाप के साए तले, तो वो उनके लिए भी बेहतर है, माशरे के लिए भी बेहतर है, हमारी जो इतनी ज्यादा शराय ख्वानदगी है उसके लिए भी बेहतर है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक बहुत अहम मगर हसास जो इशू है उस पर बात करेंगे, और वो है कम उम्री में शादी। और इसी हवाले से पिछले दिनों में जो एक बिल था वो पार्लियामेंट में आया, कौमी असेंबली और सेनेट दोनों से पास हुआ और मंजूरी दे दी गई इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी चाइल्ड मैरिज एक्ट 2025। ये बिल नेशनल असेंबली में पेश हुआ। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली शर्मिला फारूकी साहिबा ने इसको पेश किया, सेनेट में शरी रहमान साहिबा ने पेश किया। अहम बात यह है कि जब ये नेशनल असेंबली से पेश हुआ तो इस पे कोई एतराज़ नहीं हुआ, कोई ख़बर नहीं बनी कि किसी ने इसको अपोज़ किया, बल्कि शर्मिला फारूकी साहिबा ने बिल के पास होने पर यहाँ तक कहा कि इस बिल को पास करवाने का जो क्रेडिट है वो स्पीकर अयाज सादिक साहब को जाता है। बिल बहुत अहम है, उसमें बच्चे की जो तारीफ है वो 18 साल से कम उम्र लड़का या लड़की है। ये कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र जो होंगे उनका निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता, चाहे एक हो चाहे दोनों हो।
निकाह खां की ये जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए कि दोनों फरीकैन के पास जो है नादरा का शनाख्ती कार्ड मौजूद है और उस पे उनकी तारीख जो है पैदाइश की वो लिखी हुई है। खिलाफ वर्जी करने पर जो निकाह खां है उसको 1 साल कैद की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द 18 साल से कम उम्र बच्ची से शादी करता है तो 3 साल की सज़ा है। 18 साल से कबल साथ रहने को बच्चे से ज़्यादती तसव्वुर किया जाएगा। जो शख्स किसी कम उम्र दुल्हन या दूल्हे को ऐसा करने पर मजबूर करे उसे 7 साल की कैद होगी, जुर्माना अलग होगा। माँ बाप का भी इसमें जिक्र किया गया है। ये कहा गया है कि अगर वो ऐसी शादी रोकने या उसको करवाते हैं तो 3 साल की सज़ा हो सकती है। अदालत को अगर हुक्म हो कि ऐसी शादी हो रही है तो वो रोकने का हुक्म भी जारी कर सकते हैं। अगर उनको कोई ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए ताकि ऐसी शादी रुक सके तो जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला है उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट भी रखा जाएगा। बिल तो ये पास हो गया, सेनेट में अलबत्ता जब ये पास हो रहा था तो इसके खिलाफ आवाज़ें आनी शुरू हो गई। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब JUIFA के जो सरबराह है वो भी बोले। उन्होंने कहा कि ये जो बिल था इसको नहीं मंजूर करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये बिल शरीयत के मुताबिक नहीं है और फिर उन्होंने जो मौका था उसका भी जिक्र किया कि ये कोई मौका या वक्त ऐसा मुनासिब नहीं था, क्योंकि उनके ख्याल में ये एक ऐसा वक्त है जब यकजहती की ज़रूरत है मुल्क में। तो ऐसा बिल ला के जिसके ऊपर ऑब्वियसली बकौल उनके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इत्तफाक नहीं करती, तो ये मौका ऐसा नहीं था। इसके साथ साथ ये भी मालूम हुआ कि ANP के जो रहनुमाए मलबली खान साहब जो सेनेट में मौजूद हैं वो भी इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। इस बिल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद मीला फारूकी साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा JUIFA, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे ताकि वो बता सके हमें कि उनकी जमात जो है वो इस बिल को अपोज क्यों कर रही है। वेलकम टू द शो शर्मिला साहिबा। शर्मिला साहिबा, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली ये जो अहम बिल है जब आप लाई इसको उससे पहले कोई कंसल्टेशंस हुई? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बिल नेशनल असेंबली से पास हो गया तो उसके बाद क्यों हमें मालूम हो रहा है कि इसके ऊपर मुखालिफत भी कुछ जमातें कर रही हैं? जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। देखिए जी, ये बिल मैंने 1 साल पहले कौमी असम्बली में जमा कराया था। उसके बाद ऑन अ प्राइवेट मेंबर्स डे ये बिल असम्बली में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद ये ह्यूमन राइट्स कमेटी में हुआ और 2 दफ़ा ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर ये बिल डिस्कस हुआ और इसके ऊपर ये तमाम जो बातें इस वक्त की जा रही हैं, तमाम बातें हो चुकी हैं कि जहाँ आप इसको काउंसिल से जाना चाहिए या ये बच्चियों की शादी पे इस किस्म की कदगन नहीं लगानी चाहिए, तमाम चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। मैं जब 2013 में सेनेट असेंबली में ये कानून लेकर आई थी उस वक्त भी हमने अक्रॉस द बोर्ड स्टेक होल्डर से डिस्कस किया था, बैठे थे, डिलिब्रेशंस हुई थी, तमाम चीज़ें हुई थी और वहाँ पर भी ये यूनानिमसली पास हुआ था। ये बिल जो मैं कौमी असम्बली में लेकर आई हूँ इसमें कुछ शिकें ज़्यादा हैं। इसमें चाइल्ड अब्यूज़ की भी शिक शामिल है, इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग की भी शिक शामिल है, क्योंकि होता ये था कि क्योंकि बाकी सूबों में ये कानून राइज नहीं है, ये बाकी असम्बलियाँ उसको पास नहीं करा सकी, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, KPK हो या बलूचिस्तान हो। बच्ची को कराची या हैदराबाद या दादू से उठा के ले जाया जाता था और लाहौर में किसी पंजाब के किसी इलाके में शादी करा दी जाती थी क्योंकि वहाँ पर एक कानून नहीं था। तो इसलिए इसमें मैंने ये शिक भी डाली है कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट करता है बच्ची को या उठा के लेके जाता है या परस्यू करता है तो उसके ऊपर भी सज़ा होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बात यह है कि ये जो तमाम दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस मैटर। ये जो भी शख्स ये बात करता है कि ये मजहबी मामला, ये मजहबी मामला नहीं है, ये एक प्योरली ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हुकूक का मामला है। जब आप एक 11-12 साल की बच्ची जो बालिग हो जाती है, क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है बलूगियत पहले हो रही है, पोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू अर्ली प्यूबर्टी। तो अगर आप 12 साल की बच्ची की शादी कर देंगे, 13 साल की उम्र में उसको बच्चा हो गया, शी लूजेज आउट ऑन हर चाइल्डहुड, शी सफ़र्स हेल्थ वाइज, शी सफ़र्स एजुकेशन वाइज।
और एक 13 साल की बच्ची क्या बच्चा संभालेगी जब वो खुद बच्ची है। जो होती है शर्मिला साहिबा, वो भी बेहतर नहीं रहती। बच्चे की भी सेहत मुतासर होती है, बच्चा मैल न्यूरिश होता है क्योंकि बच्ची छोटी है, और एक छोटी बच्ची एक छोटे बच्चे को कैसे संभालेगी, वो खुद उसका बचपन है, वो बच्चा कैसे संभालेगी। अच्छा, अब ये जो बात की जा रही है ना, जो मैंने सुना कि मौलाना साहब ने यहाँ बात की है, जो आपने क्लिप सुनाई है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी अगर ज़बरदस्ती शादी हो रही हो, फलां करे, तो आप उसको रोकें। ज़बरदस्ती शादियाँ होती हैं, गुर्बत की वजह से माँ बाप बच्चियों को बेच देते हैं, पैसों के एवज ये शादी हो रही होती है, ये खुशी में शादी नहीं होती है। सिंध के अंदर जब सलाह आया 2022 के अंदर, मैं यहाँ आपकी बात अगर काट रही हूँ तो यही बात कि ये नेशनल असेंबली में जो आपने अभी कहा, बिकॉज आपने जिक्र किया शुरू में कि तफसील से कंसल्टेशंस हुई, तो क्या बाकी जो जमातें थी जो खास तौर पे इस वक्त इसको अपोज कर रही हैं, क्या आप लोगों ने उनसे भी बात की? कमिटीज में बिल गया होगा, क्या वो मौजूद नहीं कमेटी में? मैं आपको बताऊं, लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, जो ह्यूमन राइट्स कमेटी थी एंड दैट वाज हेडेड बाय हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरे बिल को सपोर्ट किया है। जरताज गुल ने मेरे बिल को सपोर्ट किया, उसमें जितने मेंबर बैठे थे उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया है, किसी ने इस बिल को अपोज नहीं किया। एवरीबडी बिलीव कि बिल पास होना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो शरीयत की बात हो रही है ना, गैर कानूनी, मेरे पास जब मैंने ये कानून लेकर आई थी सिंध असेंबली के अंदर 2013 में, ये चैलेंज हुआ था फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर, और 10 साल बाद 2023 में उसका फैसला आया। और मैं सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट कर जो है वो सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी कानून जल्दी से, कामरान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अगर कोई भी कानून शरीयत के खिलाफ होता है, गो टू द फेडरल शरीयत कोर्ट एंड चैलेंज इट। और मैं इसको ऑपरेटिव पार्ट करूँ, ये 6 मार्च 2023 का जजमेंट है, और जजमेंट में ये लिखते हैं, द फिक्सिंग ऑफ एन एज लिमिट टू एंटर इनटू मैरिज बाय द स्टेट और अ गवर्नमेंट as is done in the impugned law is not against the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. The act of setting a minimum age limit for marriage and setting age for an adult eligible to solemnize marriage while it impugned Section 2A of the Sindh Child Marriages Restraint Act 2013 is not against the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. So this judgment is binding. ये जो सारी शिकायतें अभी हो रही है ना, शायद उनको मालूम नहीं है कि ये जजमेंट आ चुका है। 10 साल मुकदमा चला और ये जजमेंट आया 2023 के अंदर। देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। अगर आप मुझे इजाजत दें, कामरान साहब भी हमारे साथ हैं, अगर उनका मौकफ ले लें, देन आई कम बैक टू यू। वेलकम टू द शो कामरान साहब। सेनेटर कामरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, JUIFA से उनका ताल्लुक है। कामरान साहब, आपने शर्मिला साहिबा से पता नहीं कितनी उनका जवाब आप सुन पाए हैं, पर सर हमें जरा बताइएगा कि JUIFA का एक तो एतराज क्या है, और दूसरा सर कि जब नेशनल असेंबली से कानून पास हो रहा था, तो क्यों नहीं हम जैसे लोगों को मालूम हुआ कि JUIFA जो है वो इस बिल के हक में नहीं है? ऐसा है कि जब नेशनल असेंबली में इस तरह के डिस्प्यूटेड मामला आते हैं, कई बार जो है सेनेट में भी इस तरह के मामला आते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए लाए जाते हैं। उसमें देख लिया जाता है कौन मौजूद है हाउस और कौन नहीं है, और जो डिस्प्यूटेड बिल्स हैं वो अचानक आते हैं और अचानक जो है ना वो पास भी हो जाते हैं। तो ये मुमकिन है कि उस दिन इसी तरह की बात हुई हो। मैंने इसको चेक करवाया है, ये सप्लीमेंट्री एजेंडे में आया है, और वो सप्लीमेंट्री एजेंडा यकीनन उस वक्त आया होगा जिस वक्त जो है ना वो अक्सर लोग जा चुके हों कि ये अपोज नहीं हुआ। अब वो मेरी बहन कह रही थी कि सीरियस कोर्ट का जो है ना वो सब कुछ बाइंडिंग है, वो यकीन सीरियस कोर्ट का उन पर बाइंडिंग होगा सब कुछ। सीरियस कोर्ट में चैलेंज हुआ तो फिर तो दोबारा नए बिल लाने की जरूरत नहीं होगी। तो नया बिल जो है, हमारा कहना ये था वो जो है आप दूसरे मतलब जो है वो नबी का फरमान ये है कि निकाह में सुन्नती, कि निकाह में सुन्नत है, मजहब से मुताल्लिक है और आपका एक दस्तूरी अदारा मौजूद है। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शर्मिला फारूकी साहिबा से और कामरान मुर्तजा साहब से। कामरान साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, सॉरी शर्मिला साहिबा। उसमें बाकायदा जो है ना वो सप्लीमेंट्री एजेंडे का नोटिस नहीं होता लोगों को। जब नोटिस नहीं होता तो जिनकी दिलचस्पी नहीं होती उस मामले में वो नहीं बैठे होते या वो आगे चले गए होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो इसीलिए रखा गया है कि जो इस तरह के डिस्प्यूटेड मामला है उनको जो है किसी तरह से निकाल लिया जाए और फिर दूसरों को बदनाम किया जाए कि देखिए वहां तो नहीं हुआ, यहाँ पे देखें इस तरह से हो गया। यहाँ पे भी तो तरीकाकार ये था कि कमेटी के पास जाना चाहिए था,
کوئی اور بل ہوتا تو وہ کمیٹی کے پاس جاتا, مگر اسٹیٹ اوے جو ہے نا کمیٹی کے پاس جائے بغیر جو اس کو پاس کر دیا گیا. اور پھر ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج کر تمام ممبر آپ کیا اپائنٹ کر رہے ہیں, ان سے رائے لے لیجیے. ہم یہ کہہ رہے تھے نا جی, اور رائے لینے کے لیے ہمارے پاس وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ کا نکاح میرے نبی کے ساتھ, تو اگر میرے نبی کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے وہ ایک مخصوص ایج میں درست ہو سکتا ہے, تو اس میں رائے لینے میں تو کوئی تکلیف کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. مگر وہ اس بات کے اوپر بھی کہ رائے نہیں لیتے, اور شاید جو ہے نا ہم کم علم ہیں, تو اس کم علم کی وجہ, ہماری کم علمی کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے زیادہ علم والوں نے اس کو پاس کرنا مناسب سمجھا. جی شرمیلا صاحبہ, آپ نے بات سن لی کامران صاحب کی, وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو اٹ, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بحث نہیں ہوئی, جو مجھے ان کی بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ وہ سپلیمنٹری ایجنڈا میں آیا. دیکھیے عارفہ صاحبہ, اس بل پہ پچھلے 12 سال سے بحث ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں, پچھلے 12 سال سے. مجھ سے پہلے شاید 2-3 لوگوں نے 12 مہینے سے, جی 12 سال سے, 12 ایئرز. یہ 2013 میں سندھ میں آیا تھا, اس کے بعد قومی اسمبلی میں اس کو 2-3 لوگوں نے پاس کرانے کی کوشش کی, اس پہ ڈیبیٹ ہوتا رہا اور یہ بل غائب ہو جاتا تھا, قومی اسمبلی سے غائب ہو جاتا تھا بل. سینٹ سے پاس ہوا یہ بل, ایک دفعہ شری رحمان نے پاس کروایا اور پھر وہ قومی اسمبلی آیا, غائب ہو گیا. اس بل پہ 12 سال سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس عمر کے 16 سے 18 سال لڑکی کی عمر ہونی چاہیے, اس پہ نہ جانے کب سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی, دنیا کی دیگر ممالک میں ہو رہی. اس وقت یہ قانون رائج ہے جارڈن میں, اسلامی ملک ہے نا, ٹونیشیا کے اندر, ملیشیا کے اندر, ایران کے اندر. مجھے بتائیے کیا وہ اسلامک کنٹریز نہیں ہیں؟ اور دوسری بات, سب سے اہم بات عارفہ صاحبہ, میں بار بار اس بات پہ ایمفسائز اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ ایک اسلامی معاملہ نہیں ہے. ایوری تھنگ ڈز ناٹ ہیو ٹو گو ٹو دا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. ہر چیز کے اندر شریعت, ہر چیز کے اندر اسلام نہ ڈالیں. یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے. ایک بچی کی شادی آپ کر دیتے ہیں کم عمری کے اندر, اور وہ بچی جو ہے وہ بیچاری غربت کے مارے ان کے ماں باپ اس کو بھیج دیتے ہیں اور اس کی شادی ہو جاتی ہے, اور وہ بچی خود ایک بچہ پیدا کر کے اپنی نہ وہ بچہ پال سکتی ہے, نہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے. فار گاڈ سیک, پلیز بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. دیکھیں یہ اس پہ کوئی کنٹیسٹ کرنے والی بات ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر دنیا بات کر رہی ہے اور دنیا اس پہ قانون سازی کر رہی ہے. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دا ویسٹ. آپ کے اسلامک ممالک نے اس کے اوپر قانون سازی کری ہے, تو کیا وہ ہم سے کم اسلامک ہیں؟ ہم زیادہ ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے اندر معذرت کے ساتھ پلیز شریعت کو نہ لائے کریں, اور شریعت آ چکی ہے اس کے اندر, کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا, میرا جو سندھ کا بل تھا قانون جب وہ پاس ہوا تو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج ہوا, اور فیڈرل شریعت کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے. اس سے آپ مجھے ایک بات بتائیے, اس سے بڑی کورٹ کون سی ہوگی جو یہ ججمنٹ دے گی آپ کو, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے. سو دس از ایز سمپل ایز دیٹ. Let's not make a good thing controversial. Let's be on the right side of history. بالکل صحیح کامران صاحب, یہ تو بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر یہ کوئی اعتراض کرے بھی, تو جب فیڈرل شریعت کورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے, تو پھر تو تسلی نہیں ہو جانی چاہیے ہماری. میں کامران بھائی کو وہ ججمنٹ بھیج دیتی ہوں, آپ پڑھ لیں, تسلی کریں. میں تسلی سے پڑھ بھی لوں گا, اور ممکن ہے کہ معاملہ پھر کہیں عدالتوں میں لے کے جانا پڑے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی عدالت جو ہے وہ کوئی غلط فیصلہ دے دیتی ہے, تو اس کو ری وزٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے نا کسی نہ کسی سٹیج پہ. ہماری سپریم کورٹ تک بھی جو ہے نا اکثر اپنے فیصلوں سے جو ہے نا رجوع کرتی ہے, ری وزٹ کرتی ہیں اس کو. تو اس میں اگر کوئی فیصلے میں کوئی غلطی ہے, کسی نے اس کو وہ ایسا فیصلہ دے دیا ہے یا کسی نے لے لیا ہے اس کو, تو اس کو جو ہے وہ درست کروایا جا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے. میرا نبی کہتا ہے کہ یہ اس کی سنت ہے, اور نکاح کو آسان بنانا ہے, اور وہ جو چیزیں جو ہے نا اس کے بعد جو آسان ہوں گی اس کو مشکل بنانا ہے. مگر اس کو ہم نے مشرف کے دور میں اس کو آسان بنایا, جو اس میں جو ہے وہ کمپلینٹ فائل ہوگی اور کاغذیبل نہ چھوڑا اس کو. اور اس معاملے کو جو ہے نا ہم مشکل بنا رہے ہیں. جب نیچر جو ہے وہ کسی کو بلوغت دے دیتی ہے اس سے پہلے, تو کیا اس نیچر جو ہے وہ یہاں پہ غلط ہے؟ اور نیچر کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایج جو ہے نا یہ بلوغت سے 18 سال سے پہلے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے پہلے اس نے کسی کو کسی طرح سے بلوغت کیوں دے دی ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ مذہب کے معاملے کو مذہب کا معاملہ ہی رہنے دیجیے, غیر اس کا یہ کوئی ایسا سماجی معاملہ نہ بنائیے. یقیناً اس معاملے کا تعلق سماج کے ساتھ ہے, مگر یہ
प्योर मजहबी मामला भी है उसके साथ साथ। बट सेनेटर साहब, जो ये शर्मिला साहिबा ने भी बात की कि ह्यूमन राइट्स का भी ये बहुत अहम मामला है, सिर्फ प्यूबर्टी का तो सर नहीं है ना, जैसे वो कह रही थी कि बच्ची कमजोर अगर होती है तो फिर बच्चे को भी जितनी ग़िज़ा मिलनी चाहिए या माँ से नरिशमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, ये भी वो जिक्र कर रही थी। मालूम नहीं आप उस वक्त माँ बाप से ज्यादा जो है ना, माँ बाप से ज्यादा कोई उनके साथ जो है ना, उन बच्चों के साथ लायल कोई भी नहीं होता जो उनका निकाह करते हैं। इस्लाम में ये परमिशन है वली की मर्जी की, इस्लाम में ये परमिशन भी है, ये शायद इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जाके देख लें कि जब वो बच्ची अगर उसका बालिग ना हो और निकाह किया गया हो और उसके बाद वो इस बिना पे, इस बुनियाद पे अपना निकाह फसख करवा सकती है कि उसका निकाह जो है बलूगत में नहीं हुआ था और मैं अब अपने निकाह को ख़त्म करती हूँ, ये भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में है। तो ये सारा कुछ जो है ना फिर हमारा मजहब शायद नहीं जानता था जो हम लोग आज के लोग जानते हैं, फिर इसी तरह से इसका जवाब यही हो सकता है। शर्मिला साहब, आई डोंट नो इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट ये बताइएगा कि अब ये कानून तो हाँ जी प्लीज फरमाएं। हाँ जी, मैं बार बार एक बात को दोहरा रही हूँ कि प्लीज़ ये मजहबी मामला नहीं है। जिस्मानी बलूगियत का मतलब ये नहीं है कि आप 12 साल की बच्ची की शादी कर दें। शादी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एडल्ट्स, ये आपका कुरान भी कहता है। और जब तक एक लड़की ज़हनी तौर पे बालिग नहीं होती, आप उसकी शादी कराना उस पर जुल्म है। दिस ये नाइंसाफ़ी है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। एक 12 साल की बच्ची ज़हनी तौर पे तो बालिग नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, 18 साल की उम्र से पहले आपका शिनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, 18 साल की उम्र से पहले आप वोट नहीं कर सकते, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, लेकिन 18 साल से पहले आप शादी कर दें उसकी। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका आइन कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द जेंडर। तो अगर आप लड़के की उम्र 18 साल रख रहे हैं और लड़की की 16 साल रख रहे हैं तो ये क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इस पे कभी इन्होंने बात नहीं करी। लड़की की उम्र 18 साल क्यों रखी है? वाई? लड़की की भी 16 साल कर दें, लड़की की भी 12 साल में शादी कर दें। देखें प्लीज, ये सिवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर 18 साल कर दी गई है, बल्कि आई डोंट रिमेंबर जॉर्डन या कहीं, मेरे पास पूरा चार्ट बना हुआ है जहां पर कहीं पर तो लड़की की उम्र 21 साल रखी है, कहीं 19 साल रखी है। You have to be mentally prepared and you know mature to get married. आपकी शादी हो रही है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एडल्ट्स। आपके बच्चे पैदा होते हैं, आपने बच्चे पालने हैं, आपने घर गृहस्थी देखनी है। 12-13 साल की बच्ची, इवन 14 साल की बच्ची, वो क्या करेगी आप मुझे बताइए। और एक बच्चा पैदा होता है, फिर दूसरा पैदा होता है, बच्चे, और ये सब गुर्बत की वजह से ये शादियां हो रही। माँ बाप लिटरली बेच रहे हैं बच्चों को। ये 2022 में सैलाब के बाद ये जो रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अगर कामरान साहब का मैं कमेंट आखिरी ले लूं। जी कामरान साहब, वेरी क्विकली सर, वी रन आउट ऑफ टाइम। दो बातों का जवाब देता हूं। जो दुनिया में एक मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है वो सिर्फ पाकिस्तान है। बाकी मालिक को, मुस्लिम ममालिक को कह सकते हैं, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये कि हम शायद उन बच्चियों के या उन बच्चों के माँ बाप से भी ज्यादा जो है ना वो उनके साथ जो है ना वो लायल हो गए हैं। और ये एक अजीब सी बात है, यानी वो माँ बाप जो है ना वो बेच देते हैं और हम जो है ना वो उनको जो है ना वो नहीं करेंगे। तो ये बात अगर लॉजिक को जो है ना वो समझ में आती है तो वो कर लीजिए, मगर इसमें इस कॉन्सेप्ट को जो है ये इस्लाम ने इसमें परमिशन है। आप कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है, और थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड जो है ना माँ बाप से बड़ा नेक्स्ट फ्रेंड कौन होता है, उनसे ज्यादा उनके साथ लायल कौन होता है। और इसको खत्म करने का भी तरीका जो है ना फिर इस्लाम ने इसका ऑप्शन दिया हुआ है। और ये इवन हिंदू के ज़माने में, इवन जो है अंग्रेज के ज़माने में इसकी परमिशन थी, मगर मुसलमानों के ज़माने में इसकी परमिशन ख़त्म कर दी गई है। तो आपकी मर्जी जिस तरह से करें, आपकी अक्सरियत है इस वक्त पार्लियामान के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।